Great morning, students. In the previous classes, we were doing the chapter 1. The name of the chapter is Integers. We have completed our chapter 1 and today we will start a new chapter, chapter number 2. The name of the chapter is Fractions. In this chapter, we will discuss about fractions. What are fractions? What are different types of fractions? And we will solve question related to the types of fractions. Okay, students? So, let's start from the definition of fraction. What is a fraction? This is chapter number 2, fraction. Chapter number 2 is fraction. What is a fraction? A fraction is a form of A by B. Means like this. If we write a number in this form, then this form is known as fraction, where A and B are natural numbers. Now come to what are natural numbers. Natural number means all counting numbers. All counting numbers are known as natural numbers. Here A and B are natural numbers and this form is fraction. This is called fraction. For example, if I write 3 by 5. 3 by 5 is a fraction. 7 by 9, it is also a fraction. 3 by 10, it is also a fraction. Okay, students, is it clear? Now, next one is various types of fractions. We are having various types of fraction. First one is decimal fraction. Now come to different types of fraction. Number one is decimal fraction. Types of fraction. Decimal fraction. As the name suggests, decimal means 10 or 100 or 1000. Fraction, that means 10 is divided. 10 is in denominator. Or it may be 100, it may be 1000 and any other number. A fraction in which denominator is 10, 100, 1000 and so on. Here it can be 3, it can be 7, it can be 9 and so on. क्या होती है डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या इसी फॉर्म का हो, मीन्स 10,000, लाख एंड सो ऑन. वो वाली फ्रैक्शन होती है हमारी डेसिमल फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन क्या होती है? इट इज अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज एक्सेप्ट देन 10, 100, 1000. मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर ना तो 10 हो, ना 100 हो, ना 1000 हो, ना ही इस सीरीज का कोई भी नंबर हो. वो फ्रैक्शन कौन सी होती है? वल्गर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 3 by 19, 7 by 20, 11 by 17, this type of fractions are known as vulgar fractions. Okay students, the difference between two is in decimal we only take denominator as 10, 100, 1000 and so on, but in vulgar fraction the denominator is except then 10, 100, 1000. 10, 100, 1000 and so on इस टाइप के नंबर से अलग जो डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शंस होगी वल्गर फ्रैक्शन, और जिसमें इस टाइप के होंगे वो होंगे हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. एज द नेम सजेस्ट, प्रॉपर मीन्स करेक्ट. जो एग्जैक्ट फॉर्म होती है फ्रैक्शन की इज प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन इन विच numerator is always less than denominator.
in which numerator is less than denominator. Numerator less than denominator. ओके अभी जो पहले एग्जाम्पल लिखा था वल्गर फ्रैक्शन के, वो सारे एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 3/5, 7/9, 7/11. इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें जो हमारा न्यूमरेटर है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से. यहाँ न्यूमरेटर 3 है, यहाँ 5 है, दैट मीन्स 3 इज लेस देन 5. हेयर 7 इज लेस देन 9, हेयर 7 इज लेस देन 11. वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, और यू कैन से न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो वाली फ्रैक्शंस कौन सी होती है हमारी? प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस वन इज प्रॉपर एंड नेक्स्ट वन इज improper fraction. The opposite of proper is improper. That means the definition is just opposite of proper fraction. Here in this numerator is less than the denominator, and in improper it is numerator is greater than denominator. Improper fraction. In which numerator is greater than denominator. For example, if I take the reciprocal of this will become 5/3, 9/7 and 11/7. All these are example of improper fraction in which numerator is greater than denominator. Okay students, the difference between two is in this numerator is less than denominator, and in this numerator is greater than denominator. Okay, now next one is mixed fraction. Mixed means नेम से ही पता लग रहा है कि कुछ चीज मिक्स हुई है उसमें. ठीक है. फिफ्थ वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. वो नंबर जो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो? सम हो नेचुरल नंबर का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. फॉर एग्जाम्पल 5 is to 1/4. This can be written as 5 plus 1/4. Okay. The definition of mixed fraction is sum of a natural number and proper fraction. 5 is a natural number and 1/4 is a proper fraction. Mixed fraction is sum of these two. Okay students, you take another example. For example 3 is to 7/9. 3 is to 7/9. It can be written as 3 plus 7/9. This is also an example of mixed fraction. Okay. Now comes an important property. Important property for fractions. The property is that if numerator and denominator both are multiplied by same number. What I am saying? If numerator and denominator both are multiplied by same number, the result does not change. If numerator and denominator of a given fraction is multiplied by a same number, then result will remain the same. For example, if I write 2/3 is a fraction and I multiply 2/3 by a number that is 3 in both places, numerator and denominator. Again, if I multiply this same fraction by 4, 2/3 multiplied by 5, then this is the property, because 3 cancels out with 3, 4 cancels with 4, 5 cancels with 5, and answer will remain
2/3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? सारे केसेस में जैसे 3 ऊपर नीचे हम दोनों मल्टीप्लाई किया है, 3 को ऊपर से भी और नीचे से भी, 4 को भी ऐसे ही 5, तो सारे केसेस में 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बाद में क्या बचेगा? लास्ट आंसर 2/3 ही बचेगा। और यही हमारी प्रॉपर्टी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी फ्रैक्शन के सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारा चेंज नहीं होता है, आंसर हमारा सेम रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दिस वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? A given fraction and a fraction obtained by multiplying and dividing by same number, means जो हमारे ये है 2/3 के इक्वल थी, ये एक तो ये 2/3 और इसको मल्टीप्लाई करके ये 2/3, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 6/9, इसको करेंगे हमारा आ जाएगा 8/12 एंड नेक्स्ट वन इज 10/15। हमारी जो ये वाली फ्रैक्शंस आई हैं इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब क्या है? हमारी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है और जो हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी वो प्रॉपर्टी का यूज करके जो फ्रैक्शन मिलती है उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की थी ना कि जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर हमारा सेम आ रहा था। यहां भी देखो, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं 3 से 3 2 और 3 3 2/3 ही आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2/3 इज इक्वल टू 2/3 देन दीज आर इक्वल, एंड इफ आई राइट 2/3 इज इक्वल टू 6/9, एक बार तो ऐसा लगेगा कि इक्वल नहीं है, फिर ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है और ये भी हमारा क्या आ रहा है 2/3। ठीक है, ये जो हमारी फ्रैक्शंस होते हैं ये इनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड लास्ट वन इज लाइक फ्रैक्शंस। नाम से ही पता लग रहा है, लाइक मीन्स सेम, कुछ चीज तो उसमें सेम होगी और वो सेम क्या होगी? लाइक फ्रैक्शंस में सेम क्या होता है? डिनोमिनेटर। Like fractions are those fractions in which denominator is same. For example, 5/9, 7/9, 8/9. The fractions in which denominator is same are known as like fractions. And unlike fractions, as this one is opposite of this, that means the definition will also be opposite, means in which denominator is different. Here denominator is same and in this denominator is different. 5/8, 7/9, 8/11. All these are example of unlike fractions and these are example of like fractions. Okay students, is it clear? What is the difference between like and unlike fractions? Clear? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं फ्रैक्शंस लिखूंगी और उसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंस बताती हूं। देखो, दिस इज 3/10, नेक्स्ट वन इज 2/5 एंड नेक्स्ट वन इज 5/2, 3:1/4। ये है हमारी 4 टाइप्स की फ्रैक्शन। पहली क्या है, मैंने क्या बताया था? अगर नीचे 10 हो तो कौन सी फ्रैक्शन हो जाती है? डेसिमल फ्रैक्शन। और एक और बात क्या बताई थी कि जब हमारा न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, वो और कौन सी फ्रैक्शन होती है? वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर पेपर में आ जाए तो हम इसको पहले कंसीडर क्या करेंगे? 10 है तो पहले हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। और दूसरी भी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो लेस है डिनोमिनेटर से।
सेकेंड इस वाले केस में, ठीक है, 2/5। ये भी 2 टाइप की फ्रैक्शन होगी, एक तो प्रॉपर क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, और दूसरी कौन सी, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में क्या था कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, जो डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है उससे डिफरेंट कोई भी डिनोमिनेटर हो तो वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाती है, वल्गर फ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये क्या होगी, वल्गर भी होगी और प्रॉपर भी होगी। क्लियर है? और ये 5/2 है, ये कौन सी होगी हमारी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों होगी इम्प्रॉपर, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो लेस है न्यूमरेटर से। ठीक है, ये हमारी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है, देखो 2 चीज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कुछ चीज मिक्स हो रही है, दैट मीन्स इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, this one is mixed fraction, this is decimal, vulgar, proper, improper and mixed. Okay students, and like and unlike, you know, the like fractions are those in which denominator is same and unlike in which denominators are different. Okay students, that's all for today. Thank you and have a nice day.